Hello guys, you all are very welcome to my channel Concepts Explains. Today is my first video of this channel on nucleophilic substitution reactions. This is for class 12th. This is for class 12th JEE for both main plus advanced and for NEET also. So start this topic. What is nucleophilic? Nucleophilic means this is the nucleus loving species. Nucleus loving species or this is electron rich. So we can also say that they are both negative charged carriers. Let the second part is substitution. We know substitution का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को हटाकर दूसरा उसके जगह ले ले. ऐसे V अगर B कोई एक स्पेस में है तो A उसको रिमूव करके वहाँ पे B को रिमूव करके A अपना स्पेस ले ले. And reaction means formation of new product. In JEE and NEET and class 12th syllabus, there are 6 types of ASK nucleophilic substitution reactions. First one is SN2, second is SN1 and SNI. This is SN-NGP, that is we call just SN-NGP, but we also known as NGP, and this is AR-SN1 and AR-SN2. This is mainly for aromatic species. So let's first start the first reaction of nucleophilic substitution reaction. So let's start by SN2 reaction. We call this SN2 reaction is biomolecular nucleophilic substitution reaction. Biomolecular, that means SN2. This is second order. We thought about the second order in chemical kinetics, physical chemistry chapter in class 12th. So SN2 reaction is mainly a mechanistic based. So we talked about the mechanism is when there is a group called R, that is Lg. Here is this whole is a reactant. In reactant, one is leaving group. This Lg is known as leaving group. So this whole is reactant. When nucleophilic is added with a reactant, then nucleophilic attack on the reactant with a backside. This leaving group will be हट जाएगा, तो फॉर्मेशन हो जाएगा RNU and this leaving group will be separated. This is the main mechanism. Main step mechanism we will show in the next page and next few minutes. Then हम लोग को रेट, जो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े हैं, उसको रेट हम लोग कैसे लिख सकते हैं? उसको लिखने का होता है रिएक्टेंट, मतलब RLG का पावर 1 प्लस nucleophilic का पावर 1. That is directly proportional to, if we remove this proportion, a constant comes K. That is when we add this power,
This is second order. So this name is called as a second order, that is biomolecular nucleophilic substitution reaction. This is biomolecular nucleophilic substitution reaction. This is first order. Here first order is reactant and first order is nucleophilic. Let's talk about its real mechanism. This is the very important, and in JEE and the NEET, no direct question will become. Only question based upon this mechanism. So students and dear friends, let's take serious and learn these concepts. This is the reactant C, this is Lg, this is H, this is D, this is R. This is the leaving group. Remember that. If you do not know about the leaving group, then told me in the comment section. I will make the video on this leaving group. When nucleophile is attacked on this reactant with backside here, then backside, that means in a vacant orbit. When nucleophilic attack होता है, तो then a transition state will come where C R this Lg and this nucleophile will at a 180 degree. And this D and H. This is a axis which is called for performing this reaction. Nucleophilic and leaving group comes in transition state comes in 180 degree. This is most case. After that, nucleophile will attach to the reactant and leaving group will be separated. This DRH is a stable bond and this leaving group is a weak bond. आफ्टर जैसे हम समझ लेते हैं, कोई भी अगर एक हाथ है, इस हाथ का इससे ये 5 बॉन्ड जुटा हुआ, लेकिन ये बॉन्ड जो है हल्का जुड़ा हुआ, दिस इज उतना स्टेबल नहीं है, मतलब कील अच्छे से नहीं लगा हुआ. अगर हम कहीं से इधर से अगर हम फोर्स लगाएं इस बॉडी पे, इस पॉइंट पे, तो जो अच्छे से कील में लगा हुआ है वो तो नहीं उखड़ेगा, जो अच्छे से कील में नहीं लगा हुआ वो गिर जाएगा, जो अच्छे से कील में नहीं लगा हुआ डैट इज़ द लिविंग ग्रुप. तो हम न्यूक्लियोफिल अगर अटैक करेगा तो लिविंग ग्रुप गिर जाएगा. तुरंत नहीं गिरता है, एक फेज आती है ट्रांजिशन फेज, जिसमें दोनों पर लीनियर होते हैं. उसके बाद ये आपको रिएक्शन में दिखता नहीं है. दिस इज फॉर समझने के लिए कि कोई तो एक फेज आया होगा जिसमें अटैक कर रहा होगा और वो निकल रहा होगा, तो इसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं. और उसके बाद मेन प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड. एक SN2 रिएक्शन का एक ग्राफ भी होता है, SN2 रिएक्शन का एक ग्राफ भी होता है, जो कि रिएक्शन प्रोग्रेस और कितने स्पीड से बन रहा है उसके बेसिस, स्पीड से और कितना एनर्जी एलाबोरेट कर रहा है उसके स्पीड से होता है. तो चलिए हम लोग रिएक्शन देखते हैं कि होता कैसे है. इस पे हम लोग रिएक्शन प्रोग्रेस देखेंगे, रिएक्शन प्रोग्रेस, ठीक है. एंड दिस इज एनर्जी, कितना एनर्जी निकल रहा है, ठीक है. देखिए एक स्टेट पे रिएक्टेंट होगा, उस फेज के पास ऊपर जाएगा, एक मैक्सिमम एनर्जी अटेंड करेगा, फिर एक नीचे जाके प्रोडक्ट बनेगा. ये रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट तभी बनता है जब उसका एनर्जी कम होता है, वो बहुत मोस्ट स्टेबल फॉर्म में होता है, ठीक है. तो अब पढ़े होंगे फिजिकल केमिस्ट्री में कि इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग डेल्टा H कहते हैं. दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहे हैं इसमें, इन दोनों के डिफरेंस को डेल्टा H. एंड दिस इज ए
ट्रांजिशन स्टेट का है, बोला जाता है कि एक ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंच गया। ये ग्राफ को ध्यान में रखिएगा, जिससे आपको रिएक्शन समझने में आसानी होगी। चलिए अब कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, कैसे ये रिएक्शन फॉरवर्ड कैसे जाते हैं, कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स सी। अब इसका आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड कीजिएगा। ये हो एक आपका रिएक्टेंट हो गया, रिएक्टेंट जिसमें एक पेंटागन के ऊपर, आपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये एक प्लेन के ऊपर होता है, एक प्लेन के नीचे, यहाँ से एक प्लेन के ऊपर होता है, एक प्लेन के नीचे। केसियन को हम लोग तोड़ सकते हैं, इसमें से एक न्यूक्लियोफाइल निकलेगा। कौन न्यूक्लियोफाइल है? न्यूक्लियोफाइल मैंने क्या बताया था, न्यूक्लियोफाइल उसे कहते हैं जिसका इलेक्ट्रॉन रिच हो, जिसके पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन हो। तो हम इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं केशियन को, तो कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे। पोटाशियम हरदम प्लस में आता है और सीएन के पास हरदम माइनस होता है। तो हम लोग न्यूक्लियोफाइल, हम लोग को पता चल रहा है कि ये सीएन है, पता चल रहा है। तो अब अटैक कौन करेगा? सीएन करेगा अटैक। अब आपको इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करने के लिए आपको लिविंग ग्रुप के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लिविंग ग्रुप को अच्छे से पहचान रहे हैं तो आपको मालूम होगा Br इज़ द मोस्ट फेवरेबल लिविंग ग्रुप। व्हेन दिस, जब अटैक करेंगे यहाँ पे, ये ऐसे लीव हो जाएगा। और अटैक कैसे करता है? बैक साइड से। तो बैक साइड से, और यहाँ पे इन्वर्जन हो जाता है। जब पीछे से अटैक करेगा तो ये आगे से निकलेगा, पीछे से मतलब दिस इज अटैक फ्रॉम द एच के पॉइंट पे यहाँ पे अटैक किया, तब ना ये निकला। और यहाँ पे अगर ऐसे देखिए, ऐसे दो चीज़ लगा हुआ, अगर हम किसी चीज़ को यहाँ पे अटैक करवा रहे हैं तो ये तो टूट के निकल जाएगा और ये चीज़ मुड़ के इस पोजीशन पे आ जाएगा। दिस इज इन्वर्जन कहते हैं, इसको हम लोग अम्ब्रेला इन्वर्जन भी कहा जाता है। लेट्स से आपको देर से समझ में आ जाएंगे सब कुछ। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऐसे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे H ऊपर है, लेकिन बैक साइड अटैक होने से, इन्वर्जन होने के कारण H आ जाएंगे नीचे, दिस सीन कम्स ऊपर, और इस साइड में तो कोई रिएक्शन हुआ नहीं है, तो इसको जैसे था हम लोग वैसे ही उतार देंगे। ऐसे हम लोग को प्रोडक्ट निकालना है। एंड दिस Br इज ऐसे, Br रिएक्ट विथ K प्लस, और हम बना देगा KBr। दैट इज द रिएक्शन। और देख लीजिए कैसे होता है। और CH3 CH2 CH2 और CH माइनस प्लस HBr, CH नॉट, दिस इज OH, HBr। तो हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। एंड दिस OH, मतलब O के पास नेगेटिव नहीं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि आप लिखते हैं तो ऐसे ऐसे होता है OH, और इधर कोई R, इसके पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, तो दिस इज OH। हम उसको नेगेटिव लिख सकते हैं। इस नेगेटिव ही यहाँ अटैक करेगा, क्योंकि ये H जब यहाँ जुट जाएंगे तो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोनियम आयन। लेट्स से मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे। OH, ये इसका देखिए ऑक्टेट से ज़्यादा हो चुका, तो ये प्लस हो जाता है, और यहाँ क्या बचा? Br माइनस। समझ में आया? तो अब जिसके पास अटैक होगा वो यहाँ पे अटैक करेंगे। अटैक करने से, दिस इज नॉट, ये अटैक नहीं करेंगे, ये Br जो है, Br कहाँ अटैक करेगा? ये तो एक पॉजिटिव आयन हो गया। अब हमको कैटायन बनाना है, कहाँ पे बनाएंगे? जहाँ कैटायन पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है। इसको हम यहाँ अगर अटैक करवाएं तो पॉजिटिव यहाँ बन के ये एक मोस्ट फेवरेबल लिविंग ग्रुप बन जाएगा। H2O जान रहे हैं कि बहुत स्टेबल होता है। अगर Br को हम वहाँ अटैक करवाएं तो H2O रिमूव हो जाएगा और वो बहुत ही स्टेबल होता है।
तो हम क्या हो सकता है, यहाँ पे ऑक्सीडेनियम आयन बनेगा जो वेरी अनस्टेबल है, जिसके हाइड्रोजनियम आयन और ऑक्सीडेशियम आयन इसको दोनों कहते हैं, जो कि बहुत स्टेबल है। तो ये Br जो है इस पोजीशन पे अटैक करेगा, ये जो Br इस पोजीशन पे अटैक करेगा एंड फॉर्म दिस प्रोडक्ट। अगर पानी, देखिए इसमें ट्रांजिशन स्टेट पे एक चीज़ समझिए, पानी यहाँ पे छोड़ के नहीं चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम ये बन गया तो पानी लीव कर दे, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब पानी लीव करेगा तो यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा। यहाँ पॉजिटिव साइन आने का मतलब दिस इज 1 डिग्री कार्बन एटम, कार्बन कैटायन, जो कि बहुत अनस्टेबल होता है, ऐसा कभी फॉर्म्ड ही नहीं होगा। इसलिए ये छोड़ के जाएगा नहीं, ये अटैच रहेगा। जब यहाँ पे अटैक करेगा Br तब ये लीव करेगा। ओके, अंडरस्टैंड। और इस पे एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए एक कहीं बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, जैसे C2H5 CS3 C3H9 और इधर लगा हुआ है आपका लिविंग ग्रुप, तो जो न्यूक्लियोफिलिक आएगा इधर से अटैक करना और इधर से अटैक करने में मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि C2 यहाँ पे तो खुद एक बल्कि ग्रुप है, यहाँ से उसको जगह ही नहीं मिलेगा घुसने का, जगह इसको इस साइड से मिलेगा घुसने का, इसलिए इस साइड से अटैक करेगा और इस साइड से इसको लीव करेगा। तो एक ऑर्डर होता है कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट कैसे होगा, तो उस ऑर्डर को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उस ऑर्डर में क्या होता है कि मिथाइल जो होता है ये सबसे ज़्यादा, अगर किसी भी पोजीशन पे मिथाइल है तो वो सबसे पहले रिएक्ट करेगा, मतलब उसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत तेज होगा। उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद प्राइमरी हो सकता है, मिथाइल के बाद प्राइमरी, जैसे C2 ये हो सकता है, उसके बाद सेकेंडरी हो सकता है, उसके बाद 3 डिग्री जो कार्बन होते हैं ना, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ये मतलब ऐसा मान के चलिए कि करते ही नहीं है, लेकिन इसका आपको लास्ट में कंसीडर करना है, सबसे पहले ये, ठीक है। चलिए इतना आज के लिए इतना ही हुआ। अगर आपको इस पर क्वेश्चन चाहिए तो मैं इस पे एक प्रैक्टिस सेशन का वीडियो बना दूंगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होंगे। ओके, थैंक यू।